سابق وزیر اعظم کو پاکستان کے چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہ لڑنے دیجیے. عدالت نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارا جو پہلا حصہ تھا پٹیشن کا اس کو قابل سماعت قرار دیا ہے. 22 تاریخ کا نوٹس ہوا ہے اور یوسف رضا گیلانی اس کیس کے فیصلے کے بعد جو ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنایا ہے اس کے بعد وہ ساری اخلاقی تقاضے جو ہوتے ہیں ایک ممبران پارلیمنٹ بننے کے وہ ہار چکے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے انتخاب کے اوپر ہی ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے، آپ کے بیٹے اور آپ کو نوٹس ایشو ہو جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ وضاحت پیش کرو آئینی ادارے کو، کیا تم نے اور تمہارے بیٹے نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز انڈر ٹیک کی تھی؟ کیا عوام کے اعتماد کو چوری کیا تھا؟ ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر منڈی لگائی تھی؟ اس سوال کی موجودگی میں اس پٹیشن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے زیر التوا ہونے سے وہ اخلاقی جرت جو ایک ممبران پارلیمنٹ کو سابق نااہل وزیر اعظم کو شاید دکھانی چاہیے وہ دکھائیے. اور آئین اور قانون کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ ایوان بالا میں چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ نہ بنے. آپ کے کردار کے اوپر، فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر، آپ کے صادق اور امین ہونے کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ چکا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب، آپ اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی ریس سے نکالیے. یہی اخلاقی تقاضے ہیں، یہی قانونی تقاضے ہیں اور یہی آئینی تقاضے ہیں. جہاں تک سٹے کی بات ہے، دیکھیں ہم نے تو استدعا کی تھی کہ کالے داغ کو لگنے سے روک لیجئے، لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری اس استدعا کو نہیں مانا. پاکستان کی عوام یہ استدعا ہارے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہیں ہارے. بیکاز یہ جو ایوان بالا ہے یہ عوام کی رہنمائی کرتا ہے. ممبران پارلیمنٹ عوام کا اعتماد ہے، تو عوام جو ہے وہ سٹے اپلیکیشن جو ہے ہار چکے ہیں. ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں اور آگے دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس میں ایک منٹ دیکھیں، جو آج کا فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا، اس فیصلے کو ہم نے ڈسکا کے فیصلے کے تناظر کے ساتھ بھی دیکھنا ہے. معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تمام تر ویڈیوز دیکھی. الیکشن کمیشن نے سینٹ کے انتخاب سے ایک روز قبل جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے ووٹ خریدنے کی واردات ڈال رہے تھے وہ بھی دیکھی، اور انہوں نے ہماری درخواست کو قابل سماعت قرار دے کر نوٹسز ایشو کیے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہمارے ایویڈنسز ہیں، جو ہمارے ثبوت ہیں، ان ثبوتوں کے اندر جان ہے، اور اس جان کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. تو لہذا جو ہماری پہلی جو درخواست ہے وہ درخواست ہے یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے حوالے سے. نااہلی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ووٹ چوری کر کے، ووٹ خرید کر، اراکین پارلیمنٹ کے ضمیروں کے سودے کر کر سینیٹر بنے ہیں، جو کہ الیکشن ایکٹ کے 168 کی، 167 کی، 156 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. اور جو ہم نے استدعا الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی تھی کہ جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اتنا ایویڈنس موجود ہے، اتنا ثبوت موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ فریقین کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں، تو ہماری استدعا یہ بھی تھی کہ وہی فریقین آگے چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ اپنی درخواست کا فیصلہ ہونے تک ان کے کامیابی کے نوٹیفیکیشن کو بھی روک دیں، جس طرح آپ نے ڈسکا کے ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن روکا تھا. اس کے اوپر ان کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس وجہ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیکشن 9 کے تحت اس فیصلے کو بھی ڈسکا کے فیصلے کے تناظر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہائیسٹ فورمز موجود ہوں گے ان فورمز کا بھی ہم دروازہ کھٹکائیں گے. اور میں یہ یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اپنے تمام جواز کھو چکے ہیں. ان کو فوری طور کے اوپر اپنے آپ کو چیئرمین سینٹ کی کینڈیڈیچر سے وڈرا کرنا چاہیے، ورنہ کل کو اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے اور آج کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے
जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे अवान को आलूदा कर देगा। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे, और हम इनकी नाअहली की जिद्दोजहद तक, जंग तक, नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। फिर आपको बताता चलूं कि हमारी यूसुफ रजा की नाअहली की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन ने काबिले समाअत करार दे दिया है। ये हमारी पहली सतह के ऊपर एक पहली जीत है। दूसरा जो हमारा पहलू है, इस्तदा है उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के हवाले से, उसके ऊपर हम हाईएस्ट फोरम को देखेंगे। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, मैं बात कर ले फिर करते हैं। देखिए, जैसे फरूख ने बयान किया, ये यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन के सामने दोबारा भी कहूंगी कि ये यूसुफ रजा गिलानी के कामयाबी का नोटिफिकेशन नहीं होगा, ये 22 करोड़ अवाम और जमहूरियत की नाकामी का नोटिफिकेशन होगा, जो इधर से अगर जारी हुआ तो। और ये पहले भी हमने बात की। आप कैसे, आप ये समझिए कि जो पहला सेनेट का फोरम ही गलत तरीके से गलत इलेक्शन करवा के, जाली और पैसा लगा के, मैंडेट चोरी करके आप अगर सेनेटर बन रहे हैं, और पीडीएम के हाई मॉरल ग्राउंड्स देखें कि आप ऐसे ही शख्स को उठा के चेयरमैन के कैंडिडेचर के लिए उनको आप नॉमिनेट कर रहे हैं, तो पीडीएम के मॉरल ग्राउंड्स का तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है। लेकिन आज हमारी जो 2 इल्तिजा थी, उनमें से एक को इलेक्शन कमीशन ने एडमिसिबल किया और इन सबको नोटिस जारी करेंगे। मैं समझती हूँ कि 22 तारीख को हेयरिंग लगाना, 12 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये इतना गैप देने पे हमें बिल्कुल एतराज है कि एक ऐसा शख्स जिसकी हेयरिंग लगी हुई है, एक ऐसा शख्स जो मुतनाज़ा हो चुका है, एक ऐसा शख्स जिसकी वो वीडियो सामने आ गई है कि जिसने इलेक्शन जो है वो खरीदा है, आप उसके मुताबिक जो है वो उसको कैंडिडेट बनने का मौका दे रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन कैंसिल होना या ये इनका कैंडिडेचर का जो है वो ख़त्म होना या बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह फरूख हबीब ने कहा कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस मशवरे के बाद, मशावरत के बाद उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अवाम के वोटों की जमानत का और उसकी जंग लड़ने का हमने फैसला किया है, वो हम आखिरी फोरम तक जाके लड़ेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि चोरों को आला ऐवानों से बाहर निकालें, चोरों को आला ऐवानों में ना जाने दें। एक मिनट आलिया साहब, 2 मिनट आए, पिटिशनर आइए, पिटिशनर आ रहे हैं, आपके सवाल पे आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के स्टैंड की जीत हुई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सेनेट से पहले कहा था ये वोटों की मंडी लगाएंगे, और आज इलेक्शन कमीशन ने भी इसी बात को तस्लीम किया है कि ये जो हार्ड चोर कैंडिडेट था, जो अब पीडीएम का मुश्तरका सेनेट का कैंडिडेट है, वो इस काबिल नहीं है। उसको इधर भी पेश होना होगा, अदालत में भी पेश होना होगा, और ये क्लैरिफाई करना होगा कि उसने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। और पीडीएम जो ये नारा लगाती है कि वोट को इज्जत दो, आज उनकी वोट को इज्जत दो का नारा कहां पर गया है कि एक वोट चोर जो नोट दिखाकर अवाम को बेवकूफ बनाकर और नुमाइंदों को खरीद कर यहाँ पर पहुंचा है। हम ये चाहते हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो हम सब आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और यूसुफ रजा गिलानी हार्ड चोर को डिस्क्वालीफाई कराकर दम लेंगे। 22 तारीख दूर नहीं है, लेकिन पीडीएम को ये सोचना चाहिए कि इनका सेनेट का जो कैंडिडेट है वो किसी वक्त भी नाअहल हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक नया बयानिया इख्तियार किया है। वजारत कानून इस बयानिए के आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, हमारा तो इदारों को बुलंद करने के लिए, आईनी इदारों की तौकीर को बुलंद करना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम सतून है। हमने आईनी इदारों के लिए जंग लड़ी, हमने सुप्रीम कोर्ट, आला अदालत जो है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुतनाज़ा बनाया, साबिक नाअहल वजीर आजम ने कहा कि मुझे क्यों निकाला, उनकी बेटी ने आला अदालत के मोहतरम जजेस को जो आइन की सरपरस्ती करते हैं उन्हें कहा कि पिटिशनर के वकील हैं। हम ये रवैया नहीं रखते।
आईनी इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन अपनी कानूनी चारा जोई जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अपना केस नहीं लड़ रहे। ये मलिका बुखारी, फारूक हबीब, कमर शौजब का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम का केस है। आवाम का एतमाद चोरी हुआ है, आवाम का वोट चोरी हुआ है और आवाम को जवाब दे हैं आईनी इदारे। मुझे ये बता दें कि इमरान खान ने 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड दिए थे, तो उसमें वजाहत हो चुकी है और उसमें फैसला ये आप बताएं। मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में आएंगे तो वो हाउस आलूदा हो जाएगा, तो मुझे आप ये इस सवाल का जवाब दें कि हुकूमत के 36 मेंबर थे और अपोजिशन के 68 मेंबर थे सादिक संजरानी के अदम एतमाद के मोशन के दौरान। उस वक्त हुकूमत ने 36 वोटों के बलबूते पे 64-68 वालों को हराया। उसी वक्त इमरान खान देखिए, बात यह है कि वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था, वो सेनेटर मुंतखब करने का मामला है, और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर जिन जमातों ने कहा था, सुन लेना आप बात समझ लेना, यही तो जंग हम लड़ रहे थे जब हम ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की बात कर रहे थे, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे, हम तो निजाम को जड़ से ठीक करने की बात कर रहे थे। आप ये बता दें ना, ये भी पूछ के बता दें कि किसी पार्टी ने आज तक अपनी पार्टी से किसी काउंसलर को भी निकाला है? हमने तो 20 MPs को निकाला था जी। प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम यूज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम। देखें, हमारे एविडेंसेस हमारे एविडेंसेस जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं। इनकी अपनी कन्फेशनरी स्टेटमेंट्स हैं, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे की स्टेटमेंट हैं, और उन स्टेटमेंटों के अलावा मरियम नवाज ने जो बात की कि नोट नहीं चला, टिकटें चली हैं मुस्लिम लीग नून की। राजा परवेज अशरफ साहब का वजीर आजम ऑन द असेंबली ऑफ द फ्लोर ये कह रहे हैं कि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है, बाबा ये डेस्क उधर बजाएंगे, वोट इधर देंगे। ऐसा तमाशा किस जमहूरियत के अंदर होता है? कौन सा इदारा जो है वो इस चीज की इजाजत देता है? एक मिनट देखे एक मिनट ताली सुन तो लेना। ओ भाई, मैंने सवाल सुन लिया, आ रहे हैं। देखें, बात यह है कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है। अगर आपने 16 को निकलवाना है तो आपने खरीदने वालों को भी निकालना है, उसका सवाल भी पूछे। बहुत शुक्रिया।